सीधे चलो, नहीं तो बहुत मार खाओगे। तुम्हारे माँ बाप छोड़ के मेरे पीछे आए थे। देख देख, यही है वो लफड़े वाला बहरामपाड़ा। इस वक्त स्टेशन यार। ज्यादा शाणपति नहीं, बाजू में बहरामपाड़ा है, काट के फेंक देंगे। ये अच्छा, ये वो बहरामपाड़ा। ये बहरामपाड़ा चीज क्या है? आजकल बहुत चर्चे होते हैं उसके। बहुत खतरनाक है रे। अरे ऊपर से शरीफ दिखते हैं साले, अंदर बम बनाने का फैक्ट्री चला रखा है। चारों तरफ से तुम ग्रांड डाल के जुल्म करते हो और ऊपर से बहराम का तुम नाम बदनाम करते हो। क्यों करते हो? हम लोग ने आज तक तुम लोगों को क्या दुख दिया है बताओ? हमने कौन सी बाहर काम पे नहीं जा पा रहे, कोई काम पर नहीं जा रहा है, सब रोजी से बेरोजी, बड़े बड़े कारखाने ठप हो गए। हम तो मर्द नहीं है, 10 रुपया कमाने वाली आज 2 महीने से घर में बैठ गई। कभी मट्टी उठाती हूँ, कभी मच्छी बेचती हूँ, कभी केला बेचती हूँ। मेरे 5 बच्चे हैं, हम कैसे गुजरान करें? आकर बताओ। ना कोई माँ का आसरा है, ना कोई बाप का आसरा है, ना कोई बहन का आसरा है। जहाँ जाओ गोली चलती है, जहाँ जाओ आदमी पकड़ते हैं, जहाँ जाओ ये सब लफड़े सुन के हम एक औरत जात क्या कर सकती है यहाँ पर? हमारे जात भाई का काम चले तो हम बोले भाई लाओ 150 दो, तो आज उससे भी हम मजबूर हो गए। जिसके देखो अच्छे अच्छे कारोबार वाले मजबूर हो गए। हमारा आदमी बाहर नहीं जा सकता है, पुलिस शक में पकड़ कर लेकर जाती है। बाहर निकलने का कोई इलाज नहीं देते हैं, कारोबार बंद हो गए, अच्छे अच्छे दुकानें बंद हो गई, यहाँ की हर चीज से तकलीफ हो गई। क्यों तुम तकलीफ देते हो? हमारे लोगों ने तुम्हें क्या दुख दिया? अगर तुम इसी तरीके से तनाखोरी हम लोगों से रखोगे तो तुम्हें भी यही रहना है, हमें भी यही रहना है। तुम भाई, हम भाई, तुम बहन, हम बहन, दूसरे के चढ़ाने में तुम ना इत्तेफाकी डाल के कब तक रहोगे? ये इस देश को क्यों बर्बाद करने के चक्कर में पड़ेगा? हमें इसका जवाब चाहिए। Bombay, the trade capital of India, the biggest metropolis, a destination which charms, tantalizes, and holds on to people. Many come here, but few leave. The 1991 census reveals that Greater Bombay's population has shot up from 82.27 lakhs to 98.67 lakhs in a decade. Nearly 250 families arrive in Bombay every day to woo fortune. For here, dreams are for sale. It is believed that the city's uniqueness, its vibrancy, and endless adrenaline are sustained greatly by its migrants. Bombay, the city, much adored, passionately loved, and also scandalously abused. December 6th, 1992. The Babri Masjid in Ayodhya was ruthlessly demolished. When the sun rose on December 7th, communal riots were already raging throughout the country. Painful memories of the country's blood-stained partition in 1947 that were being gradually exorcised came flooding back. The country was once again a people divided on the issue of religion. But with one difference. One of the most riot-ravaged places was now Bombay. The same Bombay that had withstood remarkably better the bitter divide in 1947. Between December 7th and 11th, over 200 people died in Bombay. Then the storm abated. The city staggered into the new year, grieved, shocked, introspective, indifferent, or merry, but overall with a sense of relief that the worst, perhaps, was over. This confidence was misplaced. Exactly a month after the carnage at Ayodhya, even as the country searched for sanity, Bombay exploded again.
The rot had set in. The second phase of the riot started on January 7th. By government admission, over 500 people died and 1,000 crore rupees worth of property and trade was destroyed. Nearly 3 lakh people fled the city. Bombay was scarred brutally and stripped of its badges of generosity, cosmopolitanism, and broad-mindedness. In short, Bombay was disfigured. In the media blitz that followed, a slum called Behrampada was singled out for a stamp of notoriety. But for some of those who live here, in the eye of the storm, controversies cannot erase reality. And reality means a laboriously scooped out and reclaimed patch of land, which they call home. कितने साल से हो इधर? कितने दिन से याद है? मेरे को तो इतना याद नहीं है, मगर मेरा लड़का 5 साल का था, मोहम्मद इब्राहिम, जब से मैं यहाँ आई हूँ। अभी कितने साल का हो गया? अब इसके 40 और 8। बोलिए, आप लोगों को पता, आप ही बोलिए। 40 और 8। अभी 40 और 8 हो गए आपके बेटे का उम्र, और तभी 5 साल का था। कैसा था ये बहराम देखने में तभी? जब इस वक्त में यहाँ 4 झोपड़े थे, बस 4 झोपड़े। केराबाई थी, एक मैं थी, और वो अमीर भी बोलते वो थी, और वो किस्ती की माँ मर गई, किरिस्तानी वो थी बस। केराबाई के पास भैंस थी, इधर भी खाली थी, उधर भी खाली थी, बीच में इतनी सी जगह थी। तो आप लोग रहते कैसे? बीच में जगह थी ना, जरा सी भरनी डाल डाल के दी है, खड्डे थे, सब खाली थी। रेवड़ा के पत्थर ला कर, इधर से मट्टी ला कर, वो मसाले वहाँ से मट्टी ला कर, इधर से मट्टी ला ला के सब खाली भरे। किसने डाला ये खाली? हमारे खुद भरे, हमने हमारे हाथों से। उन्होंने जहाँ रहते हैं उधर उसके ऊपर भरनी डाल के तुम आज तुम भरे, मैं आई, मैं भरी, आया ये भरे, वो आया वो भरे, ऐसा सब पब्लिक जमा होते गए, भरते गए, कि जगह होते गई। Yesterday's marshland is today then one of the prime developing areas of the city. The cluster of 4 huts metamorphosed into a massive slum of nearly 50,000 people. Behrampada starts from the east border of Bandra station, one of the busiest suburban junctions of Bombay. Bordering the slum on the other side is Western Highway number 8, a vital nerve center of the extended city. The station and the highway are connected by a road called Anant Kanekar Marg, which lies adjacent to Behrampada. On the northern side of the slum, land is being developed for a major railway terminus, Bandra terminus. To its northeast, Behrampada faces rows of buildings, which constitute the new middle-income group colony, the lower-income group colony, and the railway colony. The residents of these buildings have voiced a number of complaints against the people of Behrampada. पेट्रोल बॉम्ब असे गावठी बॉम्ब फेकतात त्यांना इथेच नाही त्या कॉर्नरच्या बिल्डिंग मध्ये। कॉर्नर पे रहती है, महानगर में मेरे घर का फोटो भी आया था, कॉर्नर पे रहती है। वहाँ से अपने हाँ, सब दिखाई देता है, सब दिखता है। उस दिन 6 तारीख को, 6 फ्राइडे था मेरे ख्याल से, उस टाइम 70-80 जन पूरे काले ड्रेस में थे, और मैं सर दर्द हो रहा था, इसमें बाहर थी, और अंदर में जाके देखा तो सब जन तैयारी वगैरह कर रहे थे। हमारे यहाँ के एक विजय पांडे, उनको बोला इधर के लोग अटैक करने वाले, और यहाँ पे पूरा कर्फ्यू था, और लकीली उस टाइम 2:30-3 बजे पुलिस आई और उन लोग को एक किया। Why is it that lakhs of people living in Bandra East cannot use the station road, the only access to Bandra East station? I can't come back in the evening, because on that stretch of road there are 5 or 6 small, very narrow alleys coming out on the road, which is about 15-20 feet only, and they come into the road, and when it is dark, how can I be sure that there is nobody there to stab me? Allegations against Behrampada fill the air. And this virulent, no-holds-barred campaign is led by papers such as Navkal and the Sena mouthpiece, Samna. In its mildest exercise, Samna dubbed Behrampada Harampada. आप कितना भी सीआरपी खड़ा करो, पुलिस को खड़ा करो, सैन्य को खड़ा करो, 2 दिन के लिए रुकेंगे, वापस होने वाला है। और अभी भी आपको मैं बोलता हूँ, ये शांतता ऐसा मिलने वाला नहीं है। ये कुछ इसका वो बहरामपाड़ा को उधर से निकलने बगैर वो एक शांतता किधर भी मुंबई में होने का चांसेस कम है। नहीं, हमारे जमाने में कुछ नहीं था, ना हिंदू मुसलमान के जाते, सब मिलकर खाते थे, पीते थे, बैठते थे, उठते थे। हम जानते नहीं थे हिंदू कौन है, मुसलमान। बाबरी मस्जिदचं झाल्यानंतर
सुरुवात झाली. नंतर आता 5-6 वर्ष म्हणजे काय आम्हाला असा त्रास नव्हता. पहले दुश्मनी थी क्या? नहीं, हमारे तो अच्छी खासी पहचान है. बहरामपुर में हम लोग की अच्छी लोग है पहचान वाले. तो मेरे तो कितने स्टूडेंट भी बहरामपुर से हमारे यहाँ ट्यूशन को आते थे. तो हमारे तो कुछ भी नहीं है. हम लोग ने तो कभी ये भी नहीं सोचा भी नहीं था कि यहाँ इतना होगा. एटलीस्ट बॉम्बे में तो हमने सोचा नहीं था कि हिंदू मुस्लिम का इतना झगड़ा. But the animosity and distrust among the neighbors is a recent phenomenon in the area. Certainly emotions have spiraled after a chain of incidents that occurred in the wake of Babri Masjid's demolition on December 6th. On December 7th, the residents of Bandra East woke up to the news that the idol of Ganesha in a nearby roadside shrine had been beheaded the previous night. There were no eyewitnesses and the police arrested no one. But the residents in the neighboring buildings were convinced that the Behrampada people had retaliated and thus responded to the demolition of the Babri Masjid. Soon, not just Bandra, but the entire city was engulfed in the tension that ensued. Although there are not many across the divide who are willing to even listen, Behrampada residents have their own explanation. They are sure that the idol had been mutilated by people with vested interests. These interests would be best served by defaming the entire community at Behrampada. At the end of the day on December 7th, the police recorded an incident of Hindu-Muslim clash. 4 Muslim boys and 1 Muslim woman died in the police firing that followed. 5 days later, the bodies of 7 Hindu people were found in a drain adjacent to Behrampada. The site is next to Anant Kanekar Marg, the main road. Again, there were no arrests. But unofficially, the verdict was out. Everyone was pointing towards Behrampada. Overnight, the slum of 50,000 people was held guilty for the 7 dead bodies found in its vicinity. Thus, when the whole city was reeling under the spell of violence, an inconspicuous slum called Behrampada shot into notoriety. The stigma continued as tension mounted. The storm broke on January 15, when bombs were hurled from the adjacent buildings on the Friday namazis in Behrampada. जुमे का दिन था, 15 तारीख थी और नमाज को आराम से सब लोग आ रहे थे. उसके कुछ देर बाद नमाज हो गई. नमाज होके सलाम फेरने को अभी 1 सेकंड बाकी थे. पहला बम फूटा. फिर उसके बाद भंगड़ मच गई और लोगों ने इधर उधर तितर बितर होने लगे. और उसके बाद कुछ लोग घर भाग गए, कुछ लोग मस्जिद के अंदर दाखिल हो गए. दाखिल होने के बाद 100 आदमी अंदर था और 6:30 बजे जब फौज आई तो वो लोगों को निकाल के अपने घरों को पहुंचाई. काम करता था पेंटिंग का और लाता था रोज के 150 रुपए लाता था. वो तो नमाज को गया था. अभी नमाज खत्म नहीं होने वाली हो रही थी तो उधर से आवाज आ रही थी. सब थाली मार के और बम फेंक रहे थे. अरे इधर बाजू से चारों तरफ से स्टेशन के पुल पे से भी वो नौपाड़े के पुल पे सब जगह से फेंक रहे थे. चारों तरफ से घेर लिए थे. As the terrified Namazis scattered in all directions to avoid being hit, the police drew its own conclusions. That the police picket was about to be attacked. They promptly opened fire. Shots echoed even in those sections furthest away from where the Namazis were congregated. The dead and injured included many women and children who traditionally do not offer public and collective namaz. ये खुदा यार खान चचा है, इनका नाम है खुदा यार खान. इनको फ्राइडे के दिन ही गोली लगी थी. नमाज पढ़ के घर पे आए थे और इनका घर नीचे और ऊपर दो जगह है. तो नीचे से वो उठ के ऊपर जा रहे थे और जैसा ही ऊपर चढ़ने लगे तो इनको बैक साइड से गोली लगी. गुलमोहर के पीछे से आई थी गोली और वहीं इनकी मतलब डेड हो गई. On January 15th, as dusk fell, 41 Muslim youths from Behrampada were arrested. The police authority limited their combing operations to Behrampada. It balked at the idea of searching the adjacent buildings. भी लेके गए यहाँ से लेके गए चौकी पे. तो वहाँ से लेके उन लोगों ने मारते बोले मुंडी नीचे करो. तो बोले कैसा नमाज पढ़ते उस तरीके से बोले मुंडी नीचे करो वैसा मारना चालू करे. फिर वहाँ से इन लोगों ने लेके गए और ले गया कि हम लोग को बंद कर दिए. घर में घर का दरवाजा तोड़ने लगे तो फिर मैं माँ भी थी घर में. माँ को बोला दरवाजा खोल दो तो घर में घुस गए. तो घर में घुसने के बाद बोलते हमसे घोड़ा लाओ. तो घोड़ा हमारे पास आया. घोड़ा हमारा कबाड़ खोला और सब कपड़े निकाल के फेंक दिए. कपड़े निकाल के फेंक दिया. इधर उधर देखा कुछ नहीं मिला हमारे पास.
Now see the foolishness on the part of the policemen. They show wide crime number 46 of 1993. The place of offense is mosque, near about mosque. They show 4,000 to 5,000 Muslim dangekhor. They call them Muslim dangekhor. And they show the time, precisely the time of Friday prayer. Now this congregation obviously at the mosque is to say Friday prayers. Nobody can dispute that. Now they say the collection of these 4,000 to 5,000 Muslim mob was for the purposes of committing offense, which can never be accepted by the court. Even before the effects of the masjid firing had abated, violence was unleashed on Behrampada once more. At midnight on February 1st, 54 huts were set on fire. Shortly before the fire was started, the electric supply to the whole slum was inexplicably cut. 12 बजे तक प्रेस करता रहता हूँ, वहाँ से आवाज आया, बहुत जोरों से आवाज आया और टेरिस के ऊपर से आया। वो मालूम नहीं क्या चीज क्या आया कि एकदम से हम लोग का झोपड़े के ऊपर एकदम लहर गया चारों बाजू से ही, टेरिस के ऊपर से, समझिए ना। लहर गया तो ये सब तो पहले ही बमबाजी हुआ तो सब भाग गए, लेकिन हम 3 आदमी रह गए। जो हमारा वहाँ पकड़ लिया तो सब स्त्री छोड़ के, कपड़ा छोड़ के, मैं कपड़ा अपना खाली लुंगी और कमीज पहन के मैं भागा बाजू में उधर साइड में। ऐसा बोलेंगे लोग, जब हम ये फिल्म दिखाएंगे लोगों को, लोग बोलेंगे कि वो जो हिंदू काका है उसको डरवा के ऐसा बोला है। नहीं, ऐसा कैसा नहीं है। चलिए ना, आप हाई कोर्ट में मैं बोलने वाला हूँ। मैं 40 साल से यहाँ हूँ, 1 साल से नहीं। वो क्या मेरा झोपड़ा है। I come to on 1st of February. I landed home 2 minutes to 11. 11 o'clock is the curfew time at that time. I came and my wife was at the gate. My son was with me who had come from Delhi, and she said, "Oh, good, thank God you have come. There was a blast only a little while ago, 10 minutes back." I said, "Doesn't matter." And as I was saying this, there was another in the same corner, which is the chronic trouble point for us. Whether it is being done by Building 30 or that is not my concern, because I can't see this. So there was another blast, and that was the moment when some boys came out from those surrounding buildings. And from my window I could see they didn't have anything. They were fighting with stones. 3 policemen, and policemen were blowing whistles, and by and by this crowd swelled to about 400-500 youth. This side, Hindu side, 400-500, and from the other side those fire bombs and bottles were coming. They were also, they were coming from that side. In the meantime, some boys came. Fireballs were coming from which side? From Behrampada corner. This was the time when some boys came from this Hindu side, the Chauls. They had lighted things with them, and 2 of them, I'm told, they walked in and they threw something, and after that there was fire. Who was responsible for setting those huts on fire? Whether those huts were inhabited at the moment or not, habited at that moment or not, is not my concern, because I couldn't see it. But I do know that the fire brigades then went on to that place, and in the morning I did see that had been reduced to ashes. सीढ़ी बम्बे को आने नहीं दिए, लोग ने आने नहीं दिए। बोले उधर है ना शादी हो रही, खुशी बना रहे, बोले उधर मत जाओ। जब पूरा घर जल गया ना, जब वो लोग सीढ़ी बम्बे आए, बाद में बुझाने के लिए आग। कहाँ से बम मार रहे थे? बम उधर से मार रहे थे, इधर से टेरिस पे खड़े होके यहाँ से। कौन सा टेरिस? ये टेरिस? हाँ, ये है ना, ये पूरी। और इधर से पहला ये लोग इधर से आते, फिर है ना पुलिस लोग को ऊपर ही खड़ा करते वो लोग टेरिस पे ही। पुलिस फायरिंग करती मुसलमान, ताकि है ना बुझाओ नहीं अंगारा, ऐसा करती पुलिस। बुझाने जाते हैं तो वो लोग है ना फायरिंग करते, गोली से मर जाएंगे ना, तो कैसा हमारे मुसलमान जाएंगे। फिर भी 2 जन को गोली लग गई, 2 तो जगह पे मर गए, 6 जख्मी है। हा आहे पेट्रोल बॉम्ब. ह्याच्यावर असं पेट्रोल ओतायचं आणि आग लावायची. नंतर ह्या बाटलीतून पेट्रोल ह्याच्यावर पडणार आणि मोठी आग होणार, आणि आग लागल्यानंतर हे हातानं असं करून
दुसऱ्याच्या झोपड्यावर फेकून द्यायचं. फेकल्यानंतर त्या झोपड्याला पेट घालणार. The fact that a large number of houses of Behrampada were savagely destroyed has failed to strike a chord of sympathy. The building residents are convinced that the slum dwellers themselves committed the arson. In the eyes of their neighbors, the victims and the accused are, ironically, identical. तो 1 तारीख को जब शुरुआत हो गई थी तभी पहले हम लोग के बिल्डिंग के पीछे बॉम्ब गिरा. सबसे फर्स्ट बॉम्ब रेलवे क्वार्टर्स में गिरा है, उसके बाद पीछे गिरा है. तो अब हम लोग ही हमारे बिल्डिंग को बॉम्ब फेंकेंगे क्या? उसके बाद ही पुलिस के फोर्स के ऊपर एक पुलिस भी इंजर हो गया है. इसके बाद ही कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ होगा. तो हम लोग ऐसा नहीं बोलते कि हम लोग ने अभी तक कितना भी जब भी हमारे यहाँ दंगा हुआ है यहाँ से कोई भी ओपनिंग किया नहीं कि यहाँ से किसने कुछ फेंका नहीं. ना ही हम लोग ने शुरू किया और ना ही हम लोग खत्म करना है. जाने के लिए स्टेशन चाहिए हमको बस. आप लोगों ने भी कुछ किया होगा, मतलब ऐसे क्यों? नहीं, हमने तो कुछ नहीं कर रहे भाई, हमें तो कुछ नहीं कर रहे. क्यों कि पुलिस भी हमारे सामने बैठे रह रही है और चारों तरफ से पुलिस भी घेरी हुई है. पुलिस को से खुद पूछ सकते हैं आप. अब हम एक तरफा बोल भी नहीं सकते, मगर क्या करें, हम खुद मजबूर हैं. तो वो लोग एक तरफा ही मार रहे हैं. एक तरफा ही है. तो फिर उसके बाद फिर भी सब कुछ हो रहा है, देख रहे हैं, कर रहे हैं. अच्छा, फिर आदमी मार रहे हैं तो फिर वही लोग मार रहे हैं बोलते हैं. और फिर बहराम नीचे है और फिर ये लोग ऊपर है, तो नीचे वाला ऊपर कैसा मार सकता है बोलिए आप? जो जल गया हो वो क्यों जल गया, वो आपको क्या लगता है? हमको जला दिया. हमको तो ऐसा लगता है कि उनके वजह से ही जला होगा. शायद उन लोग फेंकते फेंकते उनके घर के ऊपर गिर गया होगा. हमको तो ऐसा लगता है. हम लोग ने तो कुछ नहीं किया है. हम लोग तो क्या साधारण इंसान लोग हैं, मिडिल क्लास पीपल. हम लोग क्या करना है ये सब? वहाँ किसी आदमी के ऊपर ये हुआ है या बिल्डिंग को डैमेज हुआ है या उनकी जानी नुकसान हुआ है? क्या नुकसान जितना भी हुआ है हमारी बाउंड्री के अंदर हमारे आदमियों को नुकसान हुआ है, हमारी बाउंड्री के अंदर हमारे ही घर जले हैं. इसके बावजूद हमारे ऊपर ही ब्लेम लगाया जा रहा है कि भाई यही लोग जलाते हैं. तो हम लोग क्या अपने मकान जो भी जैसे भी टूटे फूटे मकान है, तो क्या हमको शौक है कि हम अपने मकान को जलाकर तमाशा देखेंगे? Clinging on to the myth that Muslims are a savage lot, Hindus today are eager to guard their community against any spillover of crude violence. And spurred by repeated propaganda that a non-violent Hindu is at risk, the majority community here seeks protection. The Hindutva Brigade's pungent rhetoric is reassuring to the ears of those living in the apartments around Behrampada. Feelings ran riot when the local Shiv Sena MLA and perceived Hindu protector Madhukar Sarpottar was arrested. The majority community pulsated with a sense of injustice. सरळ मी बोलतो, आज या खेर नगर मध्ये किंवा संबंध एरिया मध्ये सरपतदार होते म्हणून आम्ही वाचलो, हे तितकं सांगावं लागतं. जर आम्ही आज काँग्रेसवाले एवढे लीडर आहेत, मोठमोठे आहेत, नेते येतात, एक तरी आहे हा आज आमचा सुनील दत्त म्हणजे खासदार आहे, एक दिवस तरी हिंदूंच्या एका तळमळ काय झालं काय नाही बोलायला आला होता? आम्हाला काही वाटत नाही. हमको तो ऐसा लगता है ये लीडर लोग जो सुनील दत्त वगैरह ऐसे लोग जो आते हैं वो लोग ही भड़काते हैं. उन लोगों को जो ऊपर का ये देते हैं और वो फोर्स देते हैं, उनको सब सुविधा देते हैं. उनको हमको तो इतने दिन ये सब था कर्फ्यू वगैरह, तो दूध का तक किसने पूछा नहीं. उन लोगों को दूध सब खाने के सामान वगैरह सब जाता था उनको. अंदर की क्या गवर्नमेंट सब सबके लिए, तो हम लोगों के लिए क्यों नहीं भाई? हमने क्या किया? आता प्रत्येक नेते येतात त्यांचीच बाजू घेतात, पण हिंदूंचं कोण घेतलेलं आजवर कैवारी आहे? आज 6 डिसेंबर पासून आतापर्यंत आजच्या दिवसपर्यंत कोणी आहे दाता हिंदूंचं? आणि जो जातो त्याला गळा फास देतात आणि त्याला अरेस्ट करतात. हे काय नहीं, वाई आई कुडंट मीट देम बिकॉज जब भी मैं उधर गया हूँ हमें स्टॉप किया गया है. मैं मराठा कॉलोनी में गया, मराठा कॉलोनी में 3 बच्चों को गोलियां लगी थी. मैं वहाँ गया, मैं अंदर गया तो सब इन लोगों ने घेर लिया, मुझे महिलाओं से बात भी नहीं करने दी. मैं वहाँ पे जोगेश्वरी ईस्ट में मेघवाड़ी कॉलोनी से कुछ लोग वहाँ पे गए हुए हैं, अबाउट 250 फैमिलीज़. मैं उनको मिलने गया, राशन लेके गया, मैं अपनी बेटी के साथ गया और वहाँ भी हमको गालियाँ देकर निकाल दिया. तो उनकी पूरी कोशिश थी
कि मैं जहाँ भी इस कम्युनिटी के लोग रहते हैं, हमारी दूसरी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, हमारे भाई रहते हैं या बहनें रहती हैं, मैं उन तक पहुँच ना पाऊँ। क्योंकि अगर मैं पहुँच जाऊँगा तो मैं अपने विचार उनको बताऊँगा, मेरे विचारों से शायद वो बदल नहीं जाए, क्योंकि वो उनको अपने कब्जे में रखना चाहते थे। जो है इन लोगों को वोट हमारे तरफ से नहीं मिलते हैं, और हमारे तरफ से वोट नहीं मिलने का एक ही कारण कि मुसलमान कोई भी यहाँ के सिर्फ कांग्रेस को ही वोट देते हैं, शिवसेना को कोई वोट नहीं देता है। इसलिए पुलिस और शिवसेना मिलके इन लोगों ने सब ये हमले किए हैं। पुलिस का क्या है इसमें? पुलिस और शिवसेना के साथ यानी उन लोगों का सरफुदार यहाँ का बड़ा है, तो वो इस हिसाब से क्या है, वो पुलिस उन लोगों के अंडर में है। तो जब भी हमला हुआ है फर्स्ट पुलिस ने किया है स्टार्ट, उसके बाद इन लोग आए हैं। यानी कि उन लोगों का सिग्नल रहता था, पर्टिकुलर एक सिग्नल रहता था कि विसिल बजाना, नहीं तो कोई भी एक बम फेंकना, उसके बाद उन लोग हमला करते थे। पुलिस और शिवसेना मिलकर। हाँ, मसला वाकई कांग्रेस और शिवसेना का है, क्योंकि हम लोग कुछ भी हों, कितना भी परेशान किया जाए, ये हमारी नेतृत्व में, हमारे ख्याल में, हमारे के अंदर एक चीज़ मोहर लग चुकी है कि हम कांग्रेसी माने जाते हैं। तो इसका वो नाजायज फायदा उठा रहे हैं, वो जानते हैं कि ये कांग्रेसी हैं, इस वास्ते क्यों ना इनको परेशान, इससे पहले बता चुका हूँ कि इनको इतना परेशान किया जाए यहाँ से कि ये छोड़ के भाग जाएं, और हमारी ये सीट जो अक्सर कांग्रेस को चली जाती है ये शिवसेना की हो जाए। But as majoritarianism is aggressively and brazenly promoted by the BJP and the Shiv Sena, Muslims today are facing the fact that the Congress party's self-serving calculative patronage has left them nowhere. नहीं, कांग्रेस का टेंशन तो है, इसलिए कि वो खाली आश्वासन से ही अपना शासन चलाना चाहती है, और हमारी जहाँ तक माइनॉरिटीज़ को है वो इसी बस्ती में ही रहना पसंद करते हैं। इससे ज़्यादा अगर ऊंचे में चले जाएंगे तो ये सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। इसलिए कांग्रेस तो चाहती है कि हम यहीं डूबे रहें, यहीं पड़े रहें। Electoral politics may have divided the area into Hindu apartments and Muslim slums. But within Behrampada, another reality endures. Fear does not stalk the 12% Hindus who live here in tolerant coexistence. Majority-minority reversal in Behrampada is a statement of peace. हम यहीं रहते, दुकान के अंदर ही, यहीं। धंधा एकदम सही है, इतने झगड़े टंटे हुए मगर हमारी दुकान कभी बंद नहीं रही। हिंदू दुकान तो मेरी अकेले की है, उस तरफ भी नहीं है, उस तरफ है वो बंद हो गई, वो लाइन में थी मगर वो लोग कुछ वजह से डर के चले गए। मुझे कोई बात की यहाँ डर नहीं। वो तो जिनको बहराम के बारे में मालूम नहीं है वो डरेंगे ना, हम तो दिन भर रहते ही बहराम में, और हमारा खाना पीना उठना बैठना ही बहराम वालों के साथ है, तो सवाल ही नहीं है उसमें। जो लोग नहीं जाते हैं उनके लिए थोड़ा बोलिए आप आपका अनुभव। अभी वो तो बाहर वालों को मालूम पड़ेगा, जब धीरे धीरे प्रेस से मालूम पड़ेगा, यहाँ हम लोग जाके बाहर खबर देंगे कि भाई ऐसी कोई वहाँ बात नहीं। जब हम खुद जाते हैं वहाँ पर, हमको वहाँ पर कोई ऐसी अनसिक्योर चीज नहीं लगती है। ये किसी ने नहीं कहा है कि बिंदी उतारो, या हालांकि जैसे भी ये टेंशन चालू होता है ये लोग सब हमको बोलते हैं कि आप अपने अपने घर में रहो, हिफाजत से रहो, और बिंदी उतारने के लिए बोला है तो ये बात गलत है। हम यहाँ पे इनके लोगों में बैठते उठते, हालांकि हम 11 बजे तक भी बैठते हैं, हमने कभी बिंदी नहीं उतारी इस 2 महीने के अंदर। सब मेरे भाई लोग जैसे हैं, मेरे बेटे लोग जैसे। मैं तो इधर 15-20 साल होने को आया मुझे रह के, 4-5 बच्चे की माँ हो गई मैं यहाँ। मैं जैसे एक बच्चा लेके आई थी इधर, ये मैं 6,000-7,000 का झोपड़ा ली। मैं पहले वक्त पे एक बच्चा लेके आई थी तो 5-6 हज़ार का झोपड़ा ली, उसको मैं पक्का बनाई यहीं से। मैं यहाँ से आती नहीं, किधर गई नहीं, किधर जाई, यही सब मेरे बेटे लोग, भाई लोग, बहन लोग सब इधर से। There are no photographs of the 32-year-old Abbas. The police shot him dead when he was trying to save a temple in Behrampada from being gutted. For his mother, his wife, 3 children and a handicapped brother who were all dependent on Abbas, memories are all that remain. मेरा बच्चा बम की आवाज़ सुन के चला गया। उधर एक मंदिर है गणेश की, वो मंदिर के पास बम आ रहे थे उधर से। ये बच्चा उठा उठा के फेंका और उधर फिर भी झोपड़ों को अंगार लगी। उधर बाजू बुझाने के लिए गया तो ऊपर से पुलिस पहनेंगे मेरे बाप को। अम्मा लोग बोलते हैं झगड़ा हिंदू
में और वो मुसलमान यहाँ हिंदू मंदिर बुझाने आए, हिंदू मंदिर का आग बुझाने गए और मर गए। तो पर अपना गली का था ना, गली का था तो एक में को मदद नहीं करेगा क्या? Sharing and surviving in a neighborhood literally walled in on three sides has created an inseparable bond among the residents of Behrampada. And this bond has been further strengthened by a tragedy that has spared no one. बच्चे और आदमी भाग के अंदर आए तो वहाँ से यहाँ से हम सब बोले कि क्या कहेंगे, ऐसे तो काम नहीं चलने वाला कि अब ये पुलिस जब घर में तक आके मारने लगी तो हम कैसे ऐसे कैसे बैठे रहेंगे घर में। तो हम इसलिए बाहर निकले, हम निकल के गए और जाने के बाद में खड़े जाके पहुँचे ही हैं कि जो फड़ाक फड़ाक गोली है चालू हो गई। हम ये देखने गए थे कि हम औरतों के पर तो गोली चलाते नहीं है, तो हम होदी जाके देखने अपने आदमियों को कि गोली की आवाज़ कहाँ से आ रही। तो सब के सब एक साथ गए, पहले ऊपर फायरिंग करी उन्होंने और जैसे सब साथ में गए औरतें सब जाके देखने लगे कि बच्चे कहाँ तो एक गोली उसको कहाँ कौन सी जगह में हुई है बताइए। ये नाले पे गड्ढा, नाले का लास्ट ऐसा कोना ऐसा है तो एक गोली नीचे गिरी तो हमने गोली उठाने का ध्यान नहीं करे और उनको एक गोली लगी तो एकदम पानी में गिर गए, एकदम साइड में ही थे। हाँ नाले में गिरे। तो अब मैं ढूंढ रही, नीलम भाभी इधर से कहाँ गए तो उनका कपड़ा ऐसा पानी में देखा, मैं और एक ये और दो लड़के लोग बाहर निकाले। बाहर निकालने के बाद थोड़ा थोड़ा दम था, हम लोग ने पानी डाले मुंह पर तो उनका दम निकल गया। तो हम लोग जाके पुलिस को बोले कि ये औरत को तुम क्यों मारे, तो बोले हमने खुद होके नहीं मारी, वो आगे आई तो हमारा शूट करने का ऑर्डर है। ऐसा हुआ। तो अस्पताल में लेने के पहले इनके हो गया वही जगह पे ही हो गया, जहाँ वो पुलिस चौकी बनी हुई है वहाँ ले जाके डाल दिया पुलिस ने और वहाँ से लिया है बस। और कौन से इंस्पेक्टर मारा वो भी मालूम है। बताइए। Neelam Banu died. But for those who survived, the walls of the ghetto closed in further. Prison and haven were now one. Here, people were felled by police bullets, and outside, an entire people had become headhunters. चूंकि हम यहाँ पर मेजॉरिटी में थे, काफी तादाद में बसे हुए थे, इसलिए थोड़ा हम सेफ हो गए, वरना हमारे इलाके से लगकर जॉइंट प्लॉट्स में जितने मुस्लिम थे सबको उन्होंने खाली करके भगा दिया, उनके घरों को लूट लिया, उनके घर को कब्जा कर लिया और आज भी वो लोग इधर बाहर रुके हुए हैं, अपने घर पे आज भी नहीं जा सकते हैं। But this air of security is really a Hobson's choice. It further ghettoized the residents and left them under siege. Even the jobs and trades which are forced to remain traditional and old-fashioned in this ghetto slum are damagingly crippled. कुछ 5-6 आदमी है हमारे पास है, बाकी का तो सब मुल्क चला गया। अभी कोई जो मुल्क गए ना उनका कोई भरोसा नहीं कि कब तक आएंगे उन लोग। हाँ अपने पास तो सारे मुसलमान ही थे, उन लोग का मुल्क सब बरेली का मुल्क था, यूपी। नहीं, काम धंधा तो 2 महीने से बंद है, क्योंकि जो भी काम होता है उसके लिए हम लोग को पॉलिश वगैरह के लिए जवाहर नगर खार जाना पड़ता है और वहाँ पे तो अभी जा नहीं सकते क्योंकि वहाँ की स्थिति खराब है। At least 2.5 lakh people fled the city during the riots. This huge population displacement included several Hindus. But for the Muslim refugees, their identity and thus their existence has been threatened, making possibility of their return remote. मेरे दिल के अंदर इतनी दहशत बैठी थी कि मैं इस लहजे के अंदर, इस रूप के अंदर मैं अगर जाऊं तो मेरे को मारेंगे और ये मैं रूप बदली करके मैं जा नहीं सकता। अगर दाढ़ी टोपी निकालूं तो मैं जा सकता हूं उधर, मेरे को कोई बात की तकलीफ पहले भी नहीं थी और अभी भी नहीं होंगे, ऐसा मेरे दिल में लगा, लेकिन ये रख करके मैं उधर जा नहीं सकता। 10 रुपया कमाने वाली 2 महीने से घर में बैठ गई, कभी मट्टी उठाती हूँ, कभी मच्छी बेचती हूँ, कभी केला बेचती हूँ, मेरे 5 बच्चे हैं, हम कैसे गुजरान करें। हमारे जात भाई का काम चले तो हम बोले भाई लाओ 150 दो, तो आज उससे भी हम मजबूर हो गए, जिसके देखो अच्छे अच्छे कारोबार वाले मजबूर हो गए। तुम्हारे से मैं लूंगी, मेरे से तुम लेंगे, तुम्हारी दुकान से मैं सामान खरीदूंगी, मेरी दुकान से तुम खरीदोगे, जब तक तुम्हारा मेरा मेल नहीं होगा कोई रोजी का सवाल नहीं उठता है। तुम बताइए मुझे। This irrefutable logic is ignored in the present charged atmosphere. Besides, the attempts of those who have stayed and continued their efforts to enter the mainstream are also sabotaged. School children and parents try to cope with the loss of an academic year. The number of those thus deprived may not be many,
But in the context of a community still largely marginalized, an entire generation is threatened with the loss of a better future. 10वीं के बच्चों के फॉर्म भरे गए। 10वीं के जो बच्चे हैं उनके तो बिल्कुल ही मतलब उनकी तो कैरेक्टर ही खराब हो गया। साल भर पूरी मेहनत की है और उसके अलावा वो फॉर्म नहीं भर पाए। म्युनिसिपालिटी के स्कूल में टीचरों के ऊपर छुरी चाकू लगा दिए, उर्दू स्कूल में और बोले टीचर से कि तुम पढ़ाओगे तो हम तुम्हें जान से खत्म कर देंगे। वो टीचर अपनी इज्जत लेके एक पे एक गिरते पड़ते उलट पलट होते हुए और वो भागे और सर को पकड़ लिया। वो जैसा वैसा करके वो उसको मारे भी और लेके उसको हटाए भी। फिर मराठी के टीचरों ने भी स्कूल बंद कर दिया, बोले उर्दू के नहीं पढ़ेंगे तो हम भी नहीं पढ़ाएंगे। अब फिलहाल बीच में तमाम यहाँ के बड़े बड़े साहब लोग मिलके खामोश हो जाओ तो तमाम बोले आज से नहीं होगा। जब ये यौम जमहूरिया हुआ 26 तारीख को इधर झंडा लगाए और उसके बाद में इत्तेफाक हो गया, बोले सलाह कर लो, कुछ नहीं होगा, चलो आओ स्कूल। जब दोबारा बच्चे स्कूल को गए, काफी दिन मतलब 8 दिन हुआ था, बस ये पीर से गए दूसरे पीर को, फिर इधर धमाके बमबारी शुरू हो गई। स्कूल के टीचर बोलते हैं कि बच्चों को लेकर आओ, हमारा यूनिफॉर्म बच्चा स्कूल का पहने होगा तो कोई टच नहीं करेगा। लेकिन यूनिफॉर्म के साथ माँ बाप भी तो जाते, बच्चे को अकेला तो भेज नहीं सकते। 2 वक्त ऐसा हो चुका है कि 2 बच्चों को पकड़ा, लेकिन एक पकड़ाई में आ गया और एक भाग निकला वहाँ से और उसको मारा, उसको धमकाया, उसको लड़का था और उसको वो भाग के आया वहाँ से। तो बोले जाओ तुम बहराम में जाके खबर कर दो। और हमारे यहाँ से कोई भी जाता है सौदा सामान बेचने को तो वो लोग मारते और मार के भेजते, बोलते जाओ बहराम में खबर करो जाके कि हम पिट के आए। कोई जाने को राजी नहीं, कोई सौदे सामान को कुछ निकल नहीं सकते, कुछ बैठ नहीं सकते। एडमिशन के लिए मासूम बच्चों को ले जा रहे हैं तो उनको बोलते कि नहीं एडमिशन बिल्कुल नहीं। बहराम के हम एडमिशन नहीं, बहराम वालों के लिए एडमिशन बिल्कुल नहीं है। बहराम पाड़ा बिल्कुल बदनाम कर दिए, इस तरह ऐसा कर दिए कि जैसे हम कोई बहुत आतंकवादी रहते हैं। इस तरह हम तो यहाँ पर आओ खुद ही आके कोई देखे। A malicious campaign persists in dogging Behrampada. The slum was allegedly a godown for sophisticated arms, headquarters for several underworld dons, and a familiar stop for dope peddlers. But in the end, hard evidence stopped at one crude gun. In the case of the rest of the seizures, the police refused to distinguish between what was taken from the slum and what was recovered from other areas surrounding it. However, this did not stop the police from giving blanket statements against Behrampada to the media. Design, rather than mere emotion, appears to sustain this campaign. In Behrampada itself, there is no Hindu-Muslim tension. There is no tension at all. The people on the other side of Behrampada are the Hindus, and inside are predominantly the Muslims. The Muslims are an unauthorized settlement, which the Hindus on this side, who are not an unauthorized settlement, want to go away. It happens so that they happen to be Muslims and these people happen to be Hindus. The basic problem is that the Hatmen should not be here. That is what these people feel. And the communal violence which has started after the Ayodhya problem has given them an excellent opportunity to use, to sort of create some sort of impression here that these are the Muslims who are killing you, so they should go away. Basically, it's removing unauthorized people illegally. आमको ये पूछना आहे असं विचारायचं आम्हाला की एकूण या बहिरामपाड्याच्या एकूण तुम्ही जे वर्णन केलं त्याच्यामुळे तुम्हाला फक्त त्याच्या विरुद्ध करायचं आहे की एकूण का मुस्लिम समाजाच्या संबंध विरुद्ध तुम्हाला जायचं नाही? मला संबंध विरोध नाही, बहिरामपाड्याचा जो आहे मुस्लिम समाज मुस्लिम समाजाला आपला विरोध नाही, हा आहे त्यांचा लँड प्रॉब्लेम. The priorities have got changed. Means which jhoppadpatti is to be removed, so that many people don't like to have jhoppadpattis nearby. Even the jhoppadpatti people won't like to stay in jhoppadpattis. If they are given bungalows on Malabar Hill, they will happily go. Now, only thing is, because of these riots, the Behrampada fell victim in first priority. The bottom line is, jhoppadpattis must go. In the great mad surge towards competitive development, there is no time for lost causes like jhoppadpattis and poverty. Behrampada's temerity in occupying 10 acres of prime land in suburban Bandra must surely have contributed in pulling the slum out of obscurity and into the limelight. In a city where real estate is burgeoning business, commercial land in this part of Bombay sells for as much as 25,000 rupees per square foot, and residential land rakes in at least 3,000 rupees per square foot. Furthermore, Bandra East in recent times is being projected as a mid-town commercial centre. The city's central diamond market and wholesale cloth mart will also be relocated here. In short,
Upper class trappings are in sight. बांद्रा टर्मिनस हे 67 कोटीचा प्रोजेक्ट आहे, त्याच्यासाठी ह्यांना हलवायचं आहे. फर्स्ट फेज आणि आजच्याच पेपरला दिलाय त्यांनी. फर्स्ट फेज कंप्लीट झालेला आहे. सेकंड फेजला आम्ही सुरुवात करतोय. सेकंड फेज मध्ये इमारत क्रमांक 28च्या मागच्या ज्या रेल्वे क्वार्टर्स, बापूजी स्टॉल्स म्हणून जी ह्या ज्या जवळजवळ 350 दुकान आहेत ती कंप्लीट हलवायची आहेत आणि इथे 120 फूट रुंदीचा रस्ता करायचा. आता 2 प्लॅटफॉर्म आहेत, ते 7 प्लॅटफॉर्म अजून वाढवायचे आहेत. त्याच्यामध्ये जवळजवळ 13 माळ्याचं कमर्शियल सेंटर्स, व्यापारी केंद्र बनवायचं आणि रेल्वेनेच रेल्वेने त्याचं हे केलेलं आहे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कम्प्लीट. याच्यामध्ये बहरामपाडा गेला तरच ही पुढची जी प्रोग्रेस आहे रेल्वेने ही जेवढी इन्व्हेस्टमेंट केली तरच होणार. आणि ही ज्यावेळेला हे हलवायचा प्रश्न येतो त्यावेळेला इथले खासदार, आमदार, ह्याच्या अगोदर आमदार जनार्दन चांदोरकर होते, आता खासदार सुनील जाधव, हे प्रत्येक वेळेला ह्याच्या आडकाठी घालतात. ये बहराम जिस वक्त पानी था, जब कहाँ उजड़ गए, कहाँ भाग गए थे इन लोग, हमसे पूछो. हम परेल पे थे, समझे, आदम मिस्त्री की चाल में. हाँ तो अब जगह बन गई ना, पानी जाके सब अच्छी अच्छी जगह हो गई, सड़कें बन गए, डॉक्टर आ गए, जगह ठीक ठाक हो गई. यहाँ आके देखे बहराम में कुछ भी नहीं था, खत होता था, पानी था. फिर उसके बाद में रहते रहते में यहाँ को आते, यहाँ एक जना बेचारा हिंदू था, मुर्दारी की गाड़ी लेके जाता था उन्हें, समझे. On January 6th, representatives of all the housing societies in Bandra East and schools and colleges presented a memorandum to the police commissioner. They were demanding the eviction of all the unauthorized hutments in Behrampada, for they polluted the area. The unions of the ONGC, MSEB and Indian Oil, which are all led by the Shiv Sena, also fueled the campaign. Behrampada's oldest living resident came here in 1950. The country set out to build a nation, and some people dreamt of making a home. इधर से मट्टी ला, उधर से मट्टी ला, कहीं रेलवे की मट्टी ला, कहीं अखाड़ियों की मट्टी ला के, इधर खाड़ी की मुर्जे जाते थे 1.5 लोग के, उधर से मट्टी ला, ऐसे भर्ती करते करते अपने गुजर बसर करते गए. तो चटाई के झोपड़े बांधा है, कोई ने झाड़ियों के झोपड़े बांध लिया. ऐसे पतले के झोपड़े भी नहीं थे और ऐसी शादी भी नहीं थी. हम तो 57 में आए, 57 से पहले का बहराम आबाद है. हाउसिंग बोर्ड की बुनियाद हम लोग के सामने पड़ी. हाउसिंग बोर्ड भी उस जमाने में नहीं था. MIG की बिल्डिंग को तो अभी 7 या 8 साल हुआ MIG बिल्डिंग को बने हुए. इससे पहले MIG कुछ भी नहीं, मैं बताया ना आपको, इधर कुछ भी नहीं था. ये पूरा इलाका खाली था. पानी तो हमेशा भरता था, इसको सब भरनी डाले बनाए तो झोपड़े बने हैं. ये रास्ता तो ये बिल्कुल नहीं था, ये हम लोगों ने बनाए हैं रास्ता. कच्चा रास्ता बना है, बाद में ये पक्का बना. किसने डाले? हम लोगों ने आपस में ही डाले, चंदे किए बैठे. और किसी ने 100 रुपए, किसी ने 50 रुपए ऐसा करके दिया. मिट्टी लाया, यहाँ पर ये रास्ता बनाया कि यहाँ रोड से टच हो जाए. Behrampada paid its due to a developing society by providing traders, vendors, maidservants, artisans and labourers. But as new neighbours took up residence next door, yesterday's pathfinders became today's interlopers. तो 1970 के अंदर इंदिरा गांधी ने यहाँ पर जहाँ पे आज ONGC की बिल्डिंग है, वहाँ पे फाउंडेशन स्टोन रखा था हाईवे के ऊपर. ये स्लम डेवलपमेंट के बारे में. और मतलब वो जमीन स्लम के लिए दिया जाएगा ऐसा? हाँ, ये पूरा एरिया स्लम के अंदर डेवलपमेंट करके दिया जाएगा यहाँ पे बिल्डिंग का. और उसकी कॉस्ट थी 25,000. इन्हें 25,000 में अच्छे मकानात बना के देने के बारे में उन्होंने यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन रखा. और अच्छी बम्बई, क्लीन बम्बई. Political parties played musical chairs with power. And in this game of electoral politics, old promises were crumpled and tossed into the waste bin, never to be revived again. जनता पार्टी जो मोरारजी देसाई जब प्राइम मिनिस्टर बने थे, उस टाइम पे रेलवे ने यहाँ पे जगह अपनी डिमांड किया रिक्वायर करने के लिए कि भाई ये जमीन हमारी है. उससे पहले कोई डिमांड नहीं था यहाँ पर. हमारे जो जिंदगी के शुरुआत जो हुए हैं, इतने भयानक शुरुआत हुए कि हम लोग कैसे जिंदगी गुजारते थे. आज सब दावा रखते हैं कि ये मेरी जगह है, ये मेरी जगह है. उस वक्त किसी ने पूछा नहीं कि ये किसकी जगह है. थालियों में मीठा तेल लगा के ऐसा करते ना, तब पूरा थाली भर जाती मच्छरों से. और रात में तो बच्चों को लेके बाहर बैठे, लाइट भी नहीं, बत्ती भी नहीं, कुछ भी नहीं था ना. सिर्फ चटाई बिछा के रोड पे बच्चों को लेके ऐसा पंखे करते बैठ रहते थे हम लोग. रात ऐसी गुजरती थी गर्मी में.
अभी तो देखो चारों बाजू जैसा कि भर्ती डाल दिए, सब लारियों से मट्टी ला के डाले, सब गरीब लोग अपने पैसे से डाले, कोई सरकार नहीं डाली। What has made these early settlers outcasts? Is the dividing line language, religion or culture, or class? In a gentler, more compassionate age, these differences wouldn't necessarily have led to bloodshed. But in an open season of intolerance, those who don't fit in must either bend or bow out. अब हटो तुम लोग, हम बिल्डिंग बनाएंगे, रहेंगे, तुम लोग काहे क्यों रहते झोपड़पट्टी में? बनाने का वो तो तोड़ेंगे, उनके बाप का आर्डर है, अब क्या करेंगे? अल्लाह का मार पड़ेगा उनको। पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है एक ही तरफा, यहाँ ही क्या बात है? पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है, यहाँ तो नहीं, सब जगह हो रहा है। और हमारा क्या है कसूर वो अभी तक पता नहीं चला। होना चाहिए हमारा कसूर, मगर हमारा कसूर अभी तक पता ही नहीं चल रहा है कि क्या बात है, किस लिए क्यों कर रहे हैं हमारे साथ ये सब। दूसरी जगह कैसी रहती, क्या रहती, किधर ले आके डालते, सब डर लगता। जब इतने सालों से हम बनाई हुई जगह पे रहते पर हमारे ऊपर इतनी मुसीबतें आई, अभी दूसरी जगह रहेंगे वहाँ क्या होएगा? जब हमारी जगह पुरानी होते गई तो हटा देंगे, फिर वहाँ भी पुराने घर, वहाँ से भगाते ही जाएंगे, फिर किधर से जाके कहाँ बसेंगे? आखिर ठिकाना किधर होएगा? यहां से शहर को देखो, घेरे में कैद घेरे, खींची है जेल की सूरत हर तरफ दीवार, हर एक राह कैदियों की किस्मत की लकीर, न संगे मील, न मंजिल, न कोई रिहाई का द्वार। जो कोई तेज चले रह तो पूछता है ख्याल कि टोकने कोई ललकार क्यों नहीं आई। जो कोई हाथ हिलाए तो वहम को है सवाल, कोई छनक कोई झंकार क्यों नहीं आई। यहां से शहर को देखो तो सारी बस्ती में न कोई बाइज्जत, न किसी को होश से काम। हर एक आदमी जंजीरों से बंधा मुजरिम है, हर एक औरत जेवरों में जकड़ी गुलाम। जो साए दूर चिरागों के पास कंपते हैं, न जाने महफिल गम है कि है शराब की बू। जो रंग हर दरो दीवार पर पुता सा है, यहां से कुछ नहीं खुलता, ये फूल हैं कि लहू।